Alright, children, we have already talked of four things that are mandatory in a democracy. Let us talk about the fifth thing, rights. It is given in your book as respect for rights. Rights किसके? सबके rights. राइट से हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या निकल के आता है कि इन अ डेमोक्रेसी popular elections are important and free and fair elections are important, but what happens before or after those elections is also important. Popular governments, what do we mean by popular governments that are elected by people. जो popular governments होती हैं they can be undemocratic too. So that is why we need to watch what happens before or after those elections to decide whether a country is democratic or not. I have already given you the example of Zimbabwe and Robert Mugabe, who was the leader there. There was a single party and they were not very fair in their practices. I have already talked about it. So you can imagine that even though it was a popular government in the sense that people elected it, but these parameters can be manipulated. आप उनके साथ फिडल कर सकते हो. You can have unfair, unfree elections. So that is why we need to see what happens before elections. So now let us talk about what happens before elections, or what should happen before elections in a democratic country. So I am going to give you 4 points here. So the first point is that political activity should be allowed. What do we mean by political activity? Having a healthy opposition, there being electoral competition, there being ruled by the final say by the elected leaders. So all these activities, they should be allowed, and from the citizens side they should be allowed to protest. We'll talk about it in a moment. Second point, this brings us to the second point, that the state should respect the basic rights of freedoms of the citizens. जैसे हमने देखा था मुगाबे की गवर्नमेंट में ये नहीं होता था. You had no right for opposition, you had no right to speak up. So all these things matter. And वो कौन कौन से rights होते हैं? Since we are talking about rights, what are the basic rights which citizens should get besides right to life? Are the right to think and have opinions, to express those opinions, to form associations. मतलब express your opinion मतलब we did it in French Revolution also, that आपको अगर कुछ अच्छा नहीं लगता है, you should have a right to say that oh, this government is doing this thing wrong, and then to form associations. कि अगर आपको एक कोई common एम अचीव करना है तो उसके लिए citizens can form associations. जैसे for example, let's say in a university, students come together and form an association. They come together and they discuss their ideas, and then they try to express those ideas. So they should be allowed to form those associations. Political parties में भी यही होता है. जब कोई प्रीवियसली फॉर्म पार्टी से एग्री नहीं करता है, वो अलग जाके अपनी पार्टी बनाता है. दैट इज़ ऑल्सो लाइक फॉर्मिंग अ पॉलिटिकल एसोसिएशन. उसके अलावा कभी सिटीजन्स को लगता है कि कोई पॉलिसी गवर्नमेंट ने निकाली और वो अच्छी नहीं है, तो उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट को ये बताने के लिए कि लोगों को ये पॉलिसी पसंद नहीं है, कुछ सेक्शंस को ये पॉलिसी पसंद नहीं है, वो एक इकट्ठा होकर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं, जिससे कि लोग फिर आगे अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं. ऑल्सो ऑफकोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, द राइट टू प्रोटेस्ट एंड टेक पार्ट इन पोलिटिकल एक्शंस. जब भी आप गवर्नमेंट के रिलेशन में कुछ करते हो, वेदर सपोर्टिंग इट, वेदर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट, doing any action, forming any association, taking out a dharna, taking out a protest, anything of that sort, सरकार के साथ कुछ भी तरीके का आप इंटरेक्शन करते हो, उसको पॉलिटिकल एक्टिविटी बोला जाता है. सो सिटीजन्स शुड बी अलाउड टू
टेक पार्ट इन दीज पोलिटिकल एक्शंस. जैसे हमने देखा था अन्ना हजारे की मूवमेंट, सो दैट वॉज ऑल्सो अ सिविल सोसाइटी एक्शन, सोसाइटी में हुआ था बट इट हैड पोलिटिकल implications. So children, the third point which is very important, that there should be an independent judiciary to protect the rights of the citizens. अब एक कंट्री जो डेमोक्रेटिक नहीं होती उसमें क्या होता है कि जब सिटीजन्स के राइट्स वायलेट होते हैं तो सिटीजन्स की तरफ से बोलने वाला कोई नहीं होता है ना. एक जो गवर्नमेंट है ऑटोक्रेटिक है या ओलिगार्किक है या उसमें सिर्फ डिक्टेटरशिप है जिसमें एक ही पर्सन का रूल चलता है, तो उसमें क्या होगा, आपके रूल राइट्स जब वायलेट होते हैं तो वो सिंपली हो जाते हैं. देयर इज़ नोबडी टू डिफेंड द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स. बट इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उसमें क्या होता है, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया. अगर स्टेट जो है सिटीजन्स के राइट्स को वायलेट करना चाहे तो वो नहीं कर सकती. क्यों? बिकॉज देयर इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी जिसके सबसे टॉप लेवल पे कौन सा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट. और अगर स्टेट ऐसे या गवर्नमेंट ऐसे राइट्स को वायलेट करती है तो सिटीजन्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट जाकर या कोई भी अपना हाई कोर्ट्स जाकर और वो उसको टर्न ओवर करा सकते हैं. सो देयर इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी हेयर इन आवर कंट्री टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स. इसके अलावा एक और भी है, वो वी विल डिस्कस आफ्टर अ लिटिल वाइल. फोर्थ is the rule of law. Now as students of political science there are few टेक्निकल टर्म्स जिनका मीनिंग आपको हमेशा रटा होना चाहिए, पता होना चाहिए, ये आप नहीं भूल सकते. रूल ऑफ लॉ सिंपल मतलब क्या होता है इसका, इक्वालिटी बिफोर लॉ. कि जितने भी सिटीजन्स हैं यू कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड बिफोर लॉ ऑन एनी बेसिस लाइक जेंडर, कास्ट, क्लास, रेस, रिलीजन. सबको इक्वल ट्रीट करा जाएगा. इसके अलावा योर स्टेटस और योर प्रोफेशन ऑल्सो जो भी हो, ये नहीं कि एक प्राइम मिनिस्टर है तो उसको लॉ ज़्यादा फेवर करेगा और एक पुअर पर्सन है तो उसको नहीं करेगा. सो रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या हो गया, इक्वालिटी बिफोर लॉ. तो एक डेमोक्रेसी में जो है लॉ सबके लिए सेम होता है, जो कि एक डिक्टेटरशिप में आपको नहीं मिलेगा. तो ये 4 कंडीशंस हो गई बिफोर इलेक्शन. लेट अस लुक एट आफ्टर इलेक्शंस. आफ्टर इलेक्शंस जो हैं, जब एक पॉपुलर गवर्नमेंट इलेक्ट हो गई, अब उसको क्या क्या बेसिक लिमिटेशंस है. सो सबसे पहला जो है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती. इट कैन नॉट डू वॉट एवर इट लाइक्स. इट हैज़ टू फॉलो सर्टन रूल्स. और ये रूल्स कहाँ लेड आउट होते हैं स्पेसिफिकली, एक तो लॉज ऑफ द लैंड में होते हैं, उसके अलावा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लेड आउट होते हैं. कई बार हमने देखा है कि गवर्नमेंट जो है खुद ही अपने सिटीजन्स के राइट्स को वायलेट करती है ना. सो उस केस में व्हाट स्टॉप्स देम, इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड. तो अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है, अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होती है और जुडिशरी को डिसाइड करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ पहले माना जाता है. इसके अलावा 4th पॉइंट बेटा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आज हम सोसाइटीज़ में देखते हैं और जब लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो उनको अलग अलग नेम्स से जो है लेबल किया जाता है. इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए. आप जब एक कंट्री में रहते हो तो सबको सिक्योरिटी होनी चाहिए. दिस इज़ अ बेसिक ह्यूमन वैल्यू, है ना. कोई भी जो है इनसिक्योर होकर डर से एक कंट्री में नहीं रह सकता. सो इसीलिए एक डेमोक्रेसी का सबसे पहला फॉरमोस्ट रूल है कि अपनी माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखें. अब ये सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे ही नहीं, रिलीजन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसके अलावा जेंडर, विमेन, है ना, जो माइनॉरिटी में है उसका ख्याल रखा जाए. हमने देखा है हमारी कंट्री में कितना फीमेल फीटिसाइड होता है ना. सो इट इज़ देयर विमेन आर नाउ इन माइनॉरिटी. उसके अलावा कास्ट में द लोअर कास्ट दे हैव टू बी प्रोटेक्टेड. ये नहीं कि अपर कास्ट अपना देखते रहें और लोअर कास्ट का नहीं हो. क्लास के बेसिस में देखो माइनॉरिटीज़ कौन हो जाते हैं, पुअर पीपल. हालांकि उनका नंबर ज़्यादा है पर उनके जो है पावर कम है. सो दे हैव टू बी प्रोटेक्टेड. सो इन दिस मैनर ये डेमोक्रेसी का पहला रूल है. एंड एज एजुकेटेड चिल्ड्रन, एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, आप हमेशा याद रखेंगे कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है और हमें अपनी माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना है.
सिंपली बिकॉज हम किसी क्लास, कास्ट, रिलीजन का नंबर ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सबको जो है हम इनसिक्योर फील कराएं, उनको डर से रहने दें। 5th पॉइंट, जो डेमोक्रेसी होती है उसमें जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो हम आर्बिट्रेरी तरीके से गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन नहीं ले सकती। जैसे कि एक डिक्टेटरशिप में होता है, स्पेशली मिलिट्री डिक्टेटरशिप में जो होता है कि अगर एक रूलर को कोई बात पसंद आई, वो बोलेगा ये इसको इम्प्लीमेंट करो, और रातों रात वो डिसीजन इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन डेमोक्रेसी में इतनी जल्दी डिसीजंस नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि डिसीजंस में पहले स्टेप्स होने चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए जिन जिन पार्टीज से को इफ़ेक्ट करेगा वो डिसीजन, फिर जिनको इसके बारे में नॉलेज है उसके साथ भी डिस्कशन होना चाहिए, और बहुत सोच समझ कर, बहुत सहज तरीके से फिर जो है एक डेमोक्रेसी में डिसीजंस लिए जाते हैं, अनलाइक इन कंट्रीज़ वेयर गवर्नमेंट्स आर नॉट डेमोक्रेटिक। उसके अलावा 6th पॉइंट में, एवरी ऑफिस बेयरर हैज़ राइट्स एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हमने देखा है जब एक डिक्टेटरशिप की गवर्नमेंट होती है जिसमें एक ही आदमी के पास या एक ही लेडी के पास सारी पावर्स हैं, उसमें क्या होता है, उनके राइट्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, स्पेशली किसकी तरफ, सिटीजन्स की तरफ। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं। अगर आपको राइट्स दिए गए हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिलेंगी। इट गोज़ फॉर सिटीजन्स ऑल्सो, इट गोज़ फॉर ऑफिस बेयरर्स जो गवर्नमेंट में है उनके ऊपर। एंड 7th एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट द government, a democratic government is accountable to the people. Again, this is a technical term. You must remember what does accountability mean. Accountability का मतलब होता है answerable to people. जब आपकी सरकार जीत आई है गवर्नमेंट में, so you have to take care of the wishes of the people. अगर आप वो नहीं करोगे जैसा लोगों को चाहिए, क्योंकि लोगों ने सरकार खुद चुनी है, इट्स अ पॉपुलर गवर्नमेंट, तो जब आप चूज़ होकर आ गए हो, इलेक्ट होकर आ गए हो, तो अब आपको लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना होगा। अगर आप लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं करते, लोग अगले इलेक्शन में आपको बदल देंगे। दिस इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ अ डेमोक्रेसी। ऑल राइट, सो बेसिकली बच्चों, हमने अब तक क्या रियलाइज़ किया है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के क्या क्या बेसिक रूल्स होते हैं, और उसकी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या हमने पढ़ी है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जो है क्या 2 चीज़ें उसके हाथ बांधती है, उसको लिमिट करती है। उसमें सबसे पहला मैंने आपको पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप याद रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। तो जब भी कहीं पे आप अब से आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा, अगर किसी कंट्री में कोई न्यूज़ आती है कि इन्होंने एक झटके से एकदम कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया है ना, तो उसका मतलब वो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक नहीं है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने में क्या होता है, जैसे इंडिया में होता है, बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो यहाँ पर क्या होएगा, उसमें बहुत सारी डिस्कशंस होंगी, बहुत सारे उसमें थॉट्स आएंगे, बहुत सारी ओपिनियंस ली जाएंगी, और उसके बाद जो है डिसाइड किया जाएगा कोई भी रूल, वैसे तो कोई भी लॉ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है हमारे यहाँ पर एक प्रोसीजर दिया हुआ है कि जो लोग इलेक्ट हुए हैं, है ना, जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है, वही इसको चेंज कर सकते हैं। एक आदमी कोई इसको चेंज नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी बात है। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे दिखाता है कि एक गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेटिक है कि नहीं है। और दूसरा लिमिटेशन क्या होता है एक गवर्नमेंट पे, स्पेशली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे, सिटीजन्स राइट्स, कि लोगों के पास जब राइट्स होते हैं वो वायलेट नहीं किए जा सकते, छीने नहीं जा सकते, तब हम कह सकते हैं हाँ वो एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। अगर एक डिक्टेटरशिप की गवर्नमेंट, अगर एक ही आदमी की गवर्नमेंट है, वही सबसे पावरफुल है, उसी के पास सब कुछ है, तो इसमें क्या होगा, वो तो किसी के भी राइट्स ले लेगा, तो फिर सिटीजन्स के पास तो अपने कोई हक रह ही नहीं जाएंगे। तो इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, सिटीजन्स के राइट्स होते हैं और वो इंश्योर किया होता है कि उसके राइट्स को वायलेट ना करें। इसके अलावा बेटा अगर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखते हैं, आप 10th स्टैंडर्ड में भी देखेंगे, और हमने फ्रेंच उसमें भी देखा था कि डेमोक्रेसी क्या होती है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी सिंस वी आर स्टडिंग। तो उसमें क्या है, सबसे बेसिक थॉट एक और जो है कि डिवीज़न ऑफ पावर्स है,
जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो अभी हमने जुडिशरी का रोल देखा है यहाँ पर। लेजिस्लेचर क्या करता है, वो लॉज बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, उन लॉज को जो लेजिस्लेचर ने बनाया है उसे इम्प्लीमेंट करता है। और अगर कोई ऐसा वायलेशन ऑफ राइट्स होता है या कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है सोसाइटी में, कोई और ट्रबल होता है ऐसा, तो उसको सॉल्व कौन करता है, जुडिशरी करता है। सो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी में आप ये भी याद रखेंगे कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है, इनफैक्ट जहाँ पे पावर्स जो हो एक आदमी के हाथ में ना होके वो डिवाइडेड हो, अलग अलग लोगों के हाथ में हो, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के हाथ में हो, ताकि जो है कोई भी अपनी मनमर्जी ना कर पाए। So this brings us to the end of what is democracy, and now we need to understand why democracy is so popular nowadays, है ना। तो इसमें हम पढ़ेंगे its merits and demerits।